Hi everyone, this is Shruti Pandey from the Department of Chemical Engineering at IIT Kanpur, and I welcome you all to the lecture number 10 and the last lecture of the chapter Alcohols, Phenols and Ethers in Chemistry. So let's just first have a quick recap of what we did in the last lecture. We talked about the boiling point, the physical properties of ethers, in which we discussed about the boiling point and the solubility of ethers. We uh, we understood that why the ethers and alkanes they have the similar boiling points and these boiling points are less than the alcohols of the comparable molecular mass. ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये देखा था कि अगर हम किसी भी अलग फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसे कंपाउंड्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो वी विल फर्स्ट सी कि दे शुड हैव अ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के साथ ही काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं. So alkanes and ethers, they have comparable boiling point, and these have less boiling point as compared to alcohol because of the presence of intermolecular hydrogen bonding in alcohols. Talking about the solubility, the solubility of ethers in water is similar to the solubility of alcohols in water. Okay, why? Because both of them they possess the oxygen. Okay, and that oxygen can take part in the can participate in the hydrogen bonding through the hydrogen or water molecule. ठीक है, तो इसमें important चीज that you need to remember is that in the case of boiling point, the hydrogen bonding is the intermolecular hydrogen bonding. That is, it is between the two molecules of that compound. उसमें water नहीं है. Solubility में because that compound is dissolved in water and we are talking about कि how much quantity is being dissolved in water. That is why we are talking about the hydrogen bonding with the water molecule, hydrogen bonding of that compound with water molecule. Fine. Then coming to the chemical reactions. Okay, so we discussed that the chemical reactions of ethers they are divided into two subcategories. That is the cleavage of the CO bond in ethers, because there are two CO bonds, and the second one was the electrophilic substitution. Okay, so we the ethers they are the least reactive. That is why the CO bond, the CO bond breakage always takes place under the drastic conditions, and that too with the excess of hydrogen halide. ठीक है, तो drastic conditions नहीं होगा तो ether bond break नहीं करेगा. ठीक है, CO bond. Then uh, first we also divided it into subcategories depending upon the type of ether. That is, if we are talking about ether with the same kind of alkyl groups, that is R and R, that is it is ROR and R they are same. Both the groups are same. Then तो फिर कोई like we don't have any other choice. One of the R will form the alkyl halide and the other R will form the alcohol. ठीक है. Then coming to the ethers, okay, I will write down this because today we will also do the questions which are related to these. ठीक है, तो this will just freshen up everything that we had already discussed. ठीक है, तो अगर हम first chemical reaction, that is cleavage of CO bond, तो in that if we are talking about ROR with halide, ठीक है, तो one will for RX, the other will for ROH. ठीक है, so this is a similar substitution reaction, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. Then हाँ, we also talked about when excess of halide is there. ठीक है, तो when excess of halide is there, ये जो अल्कोहल होगा ये एक और हेलाइड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और RX बना देगा. ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ROR प्लस HX एंड दिस इज इन एक्सेस, देन बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, ROH बनेगा. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो ROH बनेगा, बट आफ्टर दैट इट विल रिएक्ट विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ HX एंड गिव अस RX. तो बेसिकली एक रिएक्शन से हमें दो RX मॉलिक्यूल मिल जाएंगे. ठीक है, एंड व्हाट मिल जाएगा, दिस. ठीक है, अगर एक्सेस में है तो, और अगर इफ इट इज गिवन इन, इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन,
कि एक्सेस में है, देन वी विल गेट द नॉर्मल प्रोडक्ट दैट इज हैलाइड एंड द अल्कोहल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नाउ अनदर टाइप ऑफ ईथर इज अल्काइल अराइल ईथर, मतलब वन साइड इज द अल्काइल ग्रुप एंड द अदर साइड इज द अराइल ग्रुप। मतलब ऐसा, एक ओ आर बॉन्ड ये है और एक यहाँ पे सीओ बॉन्ड इधर है फेनाइल ग्रुप में। ठीक है, अब व्हेन दिस विल रिएक्ट विद एचएक्स, इट विल ऑलवेज गिव फेनॉल। ठीक है, चाहे कोई भी आर ग्रुप लगा हो, क्योंकि फेनॉल इज फिक्स्ड, but this R can vary, कोई भी R ग्रुप लगा हो, we will always get phenol and RX। why? because we talked कि ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये CO बॉन्ड जो होता है ये वाला, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट गेट्स स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू दिस ओ आर बॉन्ड। इस वजह से ओ आर बॉन्ड वीक होता है और वो ब्रेक हो जाता है, तो वी ऑलवेज गेट फिनॉल एंड आर एक्स। अब ऑल्सो अगर यहाँ पे भी हम एक्सेस ऑफ एच एक्स लेते हैं, ठीक है, तो वी नीड टू रिमेम्बर कि जो एल्को ये जो फिनॉल्स होते हैं, they do not undergo a nucleophilic substitution। ठीक है, ये भी हमने phenol, when we were discussing about phenol in detail, the reactions of phenol, we discussed all the properties कि कौन कौन से reactions नहीं होते हैं phenol में। ठीक है, तो phenols do not undergo nucleophilic substitution easily। ठीक है, इसी वजह से in this case अगर excess में HX है तो भी this phenol will not be converted to halide। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो phenol प्लस ये रहेगा ऑलवेज। ठीक है, भले ही एक्सेस में हो एच एक्स या ना हो। देन then we come to the point where we are having ethers with the two different alkyl groups, that is RO R prime। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें भी वही होगा, alcohol and halide। but now we have one important question, that is which halide which alkyl group will form the alcohol and which one will form the alkyl halide। ठीक है, क्योंकि दोनों ही अगर डिफरेंट है, जो दोनों नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी डिफरेंट हो गए और प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो गए। ठीक है, तो इस केस में वी टॉक्ड अबाउट द मैकेनिज्म कि पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है। एंड सो द फर्स्ट, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, इट इज ऑलरेडी देयर इन द लास्ट लेक्चर। सो द फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। ठीक है, जिसमें कि जो एच आई होगा आपका, that will get ionized and it will break into H plus and I minus। ठीक है, तो this H plus will attach to the O of the ether molecule। ठीक है, तो जब O से H plus लग जाएगा, so that complete molecule is known as the oxonium ion। ठीक है, इसको याद रखना नाम, कि इसको बोलते हैं oxonium ion। ठीक है, जो प्रोटोनेटेड ईथर होता है उसे। नाउ इस प्रोटोनेटेड ईथर पे what happens is there is a nucleophilic attack of the nucleophile। मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हुआ, that is I माइनस। ठीक है, या फिर X माइनस। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ द I माइनस ऑन द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक जब होगा I माइनस का, तो इट हैज टू choices। either it can get attached to the carbon to the, because see there are two alpha carbons in this, right? In this kind of ether there are two alpha carbons, and nucleophilic attack can take place on either of the two alpha carbons। ठीक है, तो अब we will discuss कि कौन से केस में क्या होता है। ठीक है, तो ये first point is we discussed in this condition, like we concluded with the 3 points। there are 3 points that you should remember। first one is if sorry, if 3 degree or a tertiary alkyl group is not there, is not present। ठीक है, 3 degree group नहीं है, तो either you will have 1 degree or 2 degree groups। ठीक है, मतलब हम उस कार्बन, हम अल्फा कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो either the alpha carbon will be 1 degree or it will be 2 degree। ठीक है, तो in such cases generally the I minus attack or the nucleophilic attack, it takes place on the lower or the simpler alkyl group। ठीक है, जो छोटा होता है, और छोटा कौन सा है, प्राइमरी वाला। ठीक है, तो प्राइमरी वाले पे जाके लग जाएगा 1 डिग्री। और अगर उससे भी छोटा है, बिकॉज सी प्राइमरी में क्या होता है कि दैट अल्फा कार्बन हैज टू बी अटैच टू द वन अदर कार्बन। ठीक है, और अगर एक भी कार्बन नहीं है तो वो छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो वी कैन से 1 डिग्री लोअर सब्स्टिट्यूटेड।
लोअर सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें सबसे कम सब्स्टिट्यूशन है एंड मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो लोअर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो वो आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा, वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स टुडे, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री और द लोअर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इफ 3 डिग्री alkyl group is present, ठीक है, तो या आई डिड नॉट राइट इट दैट दिस विल फॉर्म द हेलाइड, ठीक है, ये वाला ग्रुप हेलाइड बनाएगा और बाकी दूसरा ग्रुप विल फॉर्म द अल्कोहल। इफ 3 डिग्री alkyl group is present, then they will form tertiary halide and the other group will form the alcohol, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही चीज है कि if HI is given in the like if it is given that HI is in excess, then only जो हमारा अल्कोहल बना होगा that will again give us the halide, ठीक है। तो अगर यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर HI एक्सेस में है, ठीक है, तो हमें इतना सब समझने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड ना कि विच अल्कोहल विल फॉर्म, क्योंकि फाइनली हमें हैलाइड ही मिलने हैं, ठीक है। तो इफ HI इज इन एक्सेस, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट क्या था, इफ HI इज इन एक्सेस, ठीक है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट, देखो अल्कोहल तब भी बनेगा, ठीक है, पूरे इसी मैकेनिज्म से, बट फाइनल प्रोडक्ट हैज हेलाइड्स, ठीक है। कौन कौन से? एक हेलाइड RX का होगा और दूसरा होगा R'(X), ठीक है। तो दिस these 3 points are important if we are talking or we are considering about the unsymmetrical ether or a mixed ether, ठीक है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखना। और बाकी ये आई मीन देयर आर ओनली 5 possibilities, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, दीज आर ओनली द केसेस दैट कैन हैपन, ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट, दिस वाज ऑल important, so that is why I discussed it in detail. Now we will start with the second the category, that is the electrophilic substitution. So that is also easy, like in the case of phenols. So basically this electrophilic substitution may we will discuss about the phenyl alkyl ether only, ठीक है, क्योंकि वही वाले केस में इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो similar to the hydroxy group, in the case of phenols, the alkoxy group is also ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि फिनॉल्स में हमने डिस्कस किया था कि जब रेजोनेंस होता है तो बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द ऑर्थो और द पैरा पोजिशन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आप कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखोगे, सो नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पोजिशन पे आते ही नहीं है, वो या तो दोनों ऑर्थो पोजिशन पे जाएगा और या तो पैरा पोजिशन पे जाएगा, ठीक है। सो दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? E+, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल Nu- होता है विद नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रोफाइल इज E+ विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब इट विल सर्च फॉर द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इट विल सर्च फॉर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज प्रेजेंट एट दी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है, तो वहीं पे जाके वो अटैच हो जाएगा। तो दैट इज वाई इन सिंपल टर्म्स लाइक दिस फिनोमेना, इन सिंपल टर्म्स वी कैन राइट कि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, एल्कोक्सी इज OR, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्सी इज OH, वैसे एल्कोक्सी इज OR। तो दिस एल्कोक्सी ग्रुप इज ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इफ दिस इज प्रेजेंट तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट विल अटैच एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इट एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिकॉज इट हैज O, तो वो O के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस, ठीक है। तो अब वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे कि हमेशा हम करते हैं, हैलोजनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गए, तो दैट आर मेनी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज हैलोजनेशन, ठीक है। So phenyl alkyl ethers, they undergo halogenation in the benzene ring in the presence of ethanoic acid, ठीक है, even in the absence of iron bromide due to the activating nature of the alkoxy group, ठीक है। तो जनरली जो हैलोजनेशन करवाया जाता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड, दैट इज टेकन एज अ कैटलिस्ट। Fe जैसे लाइक वी हैव सीन नो कि FeCl3
अल्कोहल के केस में भी FeCl3 होता है या फिर FeBr3 होता है, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ हैलोजन यू वांट टू ऐड। ठीक है, तो हमें इनका प्रेजेंस नहीं चाहिए इस केस में। इंस्टेड व्हाट वी आर यूजिंग इज, वी आर यूजिंग bromine in ethanoic acid. Ethanoic acid is CH3COOH with two carbons. ठीक है, CH3COOH. So I am writing down the reaction. कुछ नहीं है, इस बिल्कुल सिमिलर है ये फिनॉल्स के तरीके। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज कि फिनॉल्स की और इसकी एक चीज सेम है कि बोथ ऑफ देम दे प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द रेजोनेंस। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे बोथ ऑफ दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन यू विल रिएक्ट दिस विद ब्रोमीन इन CH3COOH, simply Br will be added at the ortho or at the para position। ठीक है, तो ये पैरा है, तो यहाँ पे आप Br लग गया एंड दिस इज OCH3, सॉरी या ऑर्थो पे ब्रोमीन। ठीक है, सो अच्छा, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेम्बर हियर कि ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये मेजर होता है। ठीक है, एंड दिस ऑर्थो प्रोडक्ट इज माइनर। व्हाई इज दिस सो? There are many reasons, but the major reason is, one of the important reasons is that because of the uh, steric hindrance। ठीक है, क्योंकि आप देखो ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 मतलब ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, जस्ट जस्ट उसके पहले वाले कार्बन पे ऑलरेडी सच अ बिग ग्रुप इज प्रेजेंट, और फिर उसके बगल वाले पे ब्रोमीन रखने के चांसेस आर लेस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक है, जगह ही नहीं, वही वाली बात है जैसे SN1 और SN2 में है कि अगर मॉलिक्यूल को आने की जगह ही नहीं मिलेगी, जैसे न्यूक्लियोफाइल को आने की जगह नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो दूसरी तरफ से आता है। दैट इज वाई इसमें भी सेम कंडीशन है कि इफ दैट मॉलिक्यूल हियर द इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट गेटिंग द स्पेस, प्रॉपर स्पेस फॉर गेटिंग अटैच्ड टू द कार्बन, इस वजह से वो पैरा पोजीशन पे जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है। ठीक है, so that is why steric hindrance is one of the major factors why para products are major, right? अच्छा, now the second reaction is Friedel-Crafts reaction। ठीक है, I am taking a new page because it will take a lot of space। ठीक है, तो Friedel-Crafts reactions are basically of two kinds। ठीक है, one is alkylation। ठीक है, मतलब this is, I'll write it down। First one is alkylation। इसमें alkyl आ रहा है, इसका मतलब है कि alkyl group is getting attached। alkyl group मतलब CH3 हो गया, C2H5 हो गया। ठीक है, that is getting attached at the ortho or the para position। ठीक है, और जो सेकेंड होता है that is acylation। ठीक है, इसमें COCH3 group is being attached। ठीक है, COCH3 मतलब ये अटैच होगा एंड दिस इज COCH3। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है इसे अकाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, COCH3 ग्रुप, इसे अकाइल ग्रुप बोलते हैं एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अकाइलेशन। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द reagent, like which reagent will be used। So basically we use anhydrous aluminum chloride, anhydrous aluminum chloride AlCl3 as a Lewis acid। Why do we use it? Because it acts as a Lewis acid, is used as a catalyst। Ethers when they react with alkyl halide, ठीक है, they form, they introduce the alkyl group at the ortho and para position। ठीक है, and when they will react with the acyl halide। ठीक है, अकाइल ग्रुप मैंने बताया ये वाला ग्रुप होता है, और जब इसमें Cl लगा दो यहाँ पे तो ये इसको एकाइल हेलाइड बोल देते हैं। ठीक है, और जो एल्काइलेशन में अटैच होता है ये सिंपली आपका कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो एकाइल हेलाइड इज CO, आई मीन दिस इज, यहाँ पे Cl लग जाएगा एक कार्बन पे, इट इज कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड था, कार्बोनिल क्लोराइड था एंड एसिड एनहाइड्राइड था। ठीक है, तो वही वाला कार्बोनिल क्लोराइड है। ठीक है, तो जब एकाइल हेलाइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो अकाइल ग्रुप विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन द रिएक्शंस। सो आई एम यूजिंग टोलीन एज माय ईथर, ये है। तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन है वो ये है। ठीक है, दैट इज अल्काइलेशन। ये अल्काइलेशन हो रहा है, व्हाई? बिकॉज वी आर रिएक्टिंग इट विद CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 in
CH2, ठीक है। सो CH2 इज सिंपली टेकन एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एनिसोल है आपका। एनिसोल में जब CH3Cl विल रिएक्ट, so obviously this CH3 will get attached, added at the ortho and para position. इसमें भी वही सेम चीज है क्या, कि पैरा पोजीशन पे जब जो पैरा प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे आके CH3 जो भी R ग्रुप होगा, सपोज इफ यू आर रिएक्टिंग इट विद C2H5Cl, देन यहाँ पे C2H5 लग जाएगा, ठीक है। तो दिस यहाँ पे R लगेगा हमेशा, एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी ऑर्थो पोजीशन पे CH3, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, क्योंकि क्योंकि इस केस में क्या होगा, वी विल कंसीडर दिस कंप्लीट मॉलिक्यूल एज टोलुइन। टोलुइन क्या होता है, फिनाइल विद CH3, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 मेथॉक्सी टोलुइन सिमिलरली, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सिमिलरली इसको बोलेंगे 2 मेथॉक्सी टोलुइन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मेथॉक्सी है। So 2 methoxy toluene and this will be the minor product. ठीक. So this is the alkylation reaction. Now coming to the acylation. Acylation में acid anhydride से react करवा देते हैं, sorry acid chloride से react करवा देते हैं। तो I am taking anisole again plus CH3COCl, ठीक है। Again these catalyst will be same, anhydrous ElCl3 as a Lewis acid. This is para, so this will be COCH3, ठीक है। And what will be the name of this product? क्योंकि यहाँ पे भी we are doing the same thing. We are treating this group, the alkyl group, as the main functional group, and that is why it will be 4 methoxy, ठीक है। It will be 4 methoxy, और ये जो बाकी कंपाउंड है उसे बोलते हैं एसीटोफेनोन, ठीक है। And this is para, so this will be major product. Similarly we will get the ortho product also. यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि ये जो COCH3 है ये ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। OCH3 से भी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल बी इवन मोर एज इन द केस ऑफ द एल्काइलेशन। तो ये और भी कम बनेगा, ठीक है। जो इसका परसेंटेज होगा दैट विल इवन बी लेसर देन द बिफोर प्रोडक्ट, प्रीवियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 methoxy एसीटोफेनोन एंड दिस विल बी माइनर, ठीक है। अच्छा, आई मीन I have not written the general reaction. If I want to write the general reaction, then what will happen is, if this is RCl, ठीक है। सपोज यहाँ पे R की जगह कुछ भी है, तो यहाँ पे भी R लगेगा, CH3 की जगह पे R लग जाएगा, यहाँ पे भी CH3 की जगह R लग जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे भी कोई कोई भी ले सकते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। जरूरी नहीं है यही ले, ठीक है। तो इफ वी वांट टू ऐड अ बिगर ग्रुप, then we can take the this we can take this R as according to that. So this will be RCOCl. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, COR। यहाँ पे क्या ऐड होगा, COR, ठीक है। So whatever reactant we will take, accordingly the product will be getting formed, ठीक है। अच्छा, this compound is known as ethanol chloride, ठीक है, because it is an acid chloride और यहाँ पे 2 कार्बन हम लोग कंसीडर करें, this one and this one, ठीक है। So that is why it is known as ethanol chloride. This is ethanol, NOYL, ठीक है, chloride. So this was all about the Friedel-Crafts reaction. That were 2 types. First one is the alkylation, क्योंकि alkyl group add हो रहा है, and second one is known as the acylation, क्योंकि acyl group add हो रहा है, ठीक। Now we move on to nitration, ठीक है। So the third electrophilic substitution reaction is nitration, जिसमें कि NO2 group add होता है, ठीक है। तो we already know the product, कि what will be the product, that NO2 group is added, it is introduced at the ortho and the para position, ठीक है। तो we will again take anisole, but here the reagents are different. It is concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3, sulfuric acid and nitric acid, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस देने का काम करता है, ठीक है, प्रोटोनेट कर देता है, एंड ये जो HNO3 है, इट प्रोवाइड्स द NO2 ग्रुप। तो आई विल टेक anisole अगेन, ठीक है।
Now it is reacted with these compounds, and similarly we will get the para पे NO2 plus ortho पे NO2. ठीक है, this will be the para one will be the major product, the same reason, and ortho one will be the minor product. Okay, so these are this was all about the electrophilic substitution, and we have completed the reactions, the chemical reactions of ethers also. Okay, so now we will do the questions which are related to the preparation of ethers and the chemical reactions. Just give me 2 minutes. So yes, we had discussed the questions which were related to the preparation of ethers. ठीक है, जिसमें कि the first one was the dehydration of alcohols and the other one was the Williamson synthesis in the lecture number 9. ठीक है, so we are not going to discuss that. The questions related to Williamson synthesis, which is a very important topic. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा confusing है, and like which ether will be getting formed and which kind of reactant you have to use. ठीक है, तो वो चूज करने के लिए दिस फॉर द विलियमसन सिंथेसिस यू कैन गो टू द लेक्चर नंबर 9. So we are discussing the questions related to the chemical reactions. ठीक है, so in this you have to tell the major products which will be formed when you heat the ethers with HI. ठीक है, so I am giving you the ethers and you are heating these ethers with the HI, and which of the like what will be the products. So these are the some big ethers, plus HI. The conditions will be harsh because it involves the cleavage of CO bond. ठीक है, now so what will be the product as we discussed कि सबसे पहले जब भी HI के साथ में रिएक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, we need to remember those 3 rules or you can say overall total 5 rules. ठीक है, जो अभी हमने we had discussed in the starting of this lecture. Those 5 rules are just to be remembered. तो क्या करना है सबसे पहले, because it is a mixed ether, तो वी विल सी कि टर्शरी ग्रुप डजंट है कि नहीं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन के बारे में देखेंगे, अल्फा कार्बन को देखेंगे, दिस अल्फा कार्बन एंड दिस अल्फा कार्बन, तो टर्शरी ग्रुप तो नहीं है कोई, बिकॉज बोथ ऑफ देम दे हैव CH2. ठीक है, तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप इज नॉट देयर. दैट इज व्हाई द फर्स्ट रूल विल अप्लाई, that says कि if there is the absence of tertiary group, then a simpler halide or you can say the less substituted halide will get formed. क्योंकि दोनों में अल्फा कार्बन देखेंगे तो दोनों में CH2 है. ठीक है, दोनों में ही जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेम है, so that is why we will prefer the simpler alkyl group for the halide. ठीक है, तो सिंपल ग्रुप कौन सा है, ये वाला, और बाकी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें ब्रांचिंग है. ठीक है, तो जो सिंपलर ग्रुप है छोटा वाला, दैट विल फॉर्म halide. So our product would be CH3 CH2I, and जिस मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये वाला, तो यहीं पे आपका OH लगेगा, सॉरी इधर पर, इधर पे. ठीक है, तो ये जो O है इसी के साथ में H लग जाएगा आके, तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा. जस्ट यू नीड टू ऐड H, CH, CH2, OH and one CH3 over here. ठीक है, सो दिस इज द हैलाइड एंड दिस इज द अल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आई एम राइटिंग डाउन द रूल. ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि कैसे क्वेश्चंस में क्या यूज करना है ना. सेकेंड क्वेश्चन इज, ठीक है, these is one group and the other group is, okay, and this is reacted with HI. अब आप इसमें देखो ये भी, दिस इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ईथर. ठीक है, तो अगेन वी विल फर्स्ट सी कि टर्शरी ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं. ठीक है, दोनों अल्फा कार्बन को वी विल एनालाइज एंड वी विल, एंड वी सी दैट जो सेकेंड वाला ग्रुप है, द अदर ग्रुप, दैट इज द टर्शरी ग्रुप. क्यों, क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच टू, द अल्फा कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन. ठीक है, इस ग्रुप की बात कर रही हूँ, दिस इज द टर्शरी ग्रुप. So that is why in the presence of tertiary group, the tertiary halide is formed. तो क्योंकि उस केस में कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, which mechanism, that is SN1 mechanism is favorable. तो कार्बोकेटाइन is being formed. ठीक है, तो जो बाकी बचा ग्रुप है, that will form alcohol which is CH2 और CH3 CH2 CH2 OH. ठीक है, this is the alcohol
and this is the I. CH3, CH2, C, CH3, CH3 एंड यहाँ पे I। ठीक है, मतलब जिस बॉन्ड जिस जगह से O लगा हुआ है वहीं पे आपको I लगा देना है। ठीक है, वही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें। which rule have we applied? We are getting a tertiary halide. Now the third question, so it involves the aryl group, the phenyl ring। ठीक है, so this is CH2, this is O, and this is again the phenyl ring। ठीक है, and you are reacting this with HI। now again, क्योंकि इसमें वन ऑफ द ग्रुप्स इज पीएच। ठीक है, बाकी जो दूसरा ग्रुप है वो क्या है? बेंजाइल। बेंजाइल ग्रुप मैंने बताया था क्या होता है, कि मतलब फिनाइल रिंग भी है और उसके साथ में यहाँ पे CH2 भी है और फिर उसके साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है, सो दिस इज नोन एज अ बेंजाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर कोई ग्रुप डायरेक्टली पीएच के साथ अटैच्ड है, सो देन दैट ग्रुप इज नोन एज द फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यही दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, तो बिकॉज फिनाइल ग्रुप एक डायरेक्टली लगा हुआ है, सो दैट इज वाई वी विल गो टू द रूल नंबर 2। ठीक है, जिसमें कि वी डिस्कस्ड कि बिकॉज ये ओ दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो ये कभी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब फेनॉल इज द ऑलवेज इज द प्रोडक्ट ऑलवेज इन सच केसेस। ठीक है, तो जो बाकी का ग्रुप होगा वो अल्कोहल, सॉरी, हैलाइड, और दिस विल गेट फेनॉल। ठीक है, तो सबसे पहले फेनॉल इज द प्रोडक्ट एंड द अदर प्रोडक्ट इज हैलाइड, तो CH2 I, and this is the phenyl group, benzyl group, so this is benzyl iodide। ठीक है, now in this uh, just remember कि phenol is the product। now similarly the next question, this, so what kind of ether is this? This is a simple ether। why? because both the sides, both the alkyl groups are exactly the same। ठीक है, इसका मतलब ये सिंपल ईथर है, एंड इसमें क्या है? रूल नंबर 1 विच सेज वन अल्कोहल एंड वन हैलाइड, क्योंकि क्वेश्चन हैज नॉट मेंशन कि वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ HI। ठीक है, इट हैज नॉट मेंशन। ठीक है, तो इसमें इट विल बी सिंपल CH2OH एंड सेम हैलाइड I। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया? ये सिंपल ईथर है तो सेम ग्रुप्स। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी आर टेकिंग anisole OCH3 with a phenyl group। ठीक है, प्लस HI। इसमें भी क्या है? बिकॉज O से डायरेक्टली रिंग अटैच्ड है, तो इसका मतलब फेनॉल विल ऑलवेज बी द प्रोडक्ट। ठीक है, और बाकी का CH3 विल बी हैलाइड। दिस इज फेनॉल एंड दिस इज, क्योंकि वी हैव CH3, so this is CH3I, and this also we have to remember phenol। ठीक है, now next question, this is the last one related to this, क्योंकि हमने सारे टाइप डिस्कस कर लिए हैं। दिस इज अ confusing question because on one side you have the phenyl ring and on the other you have the ethyl। ठीक है, तो generally what students will do, because this is the benzyl ethyl ether। ठीक है, ये phenyl ethyl ether नहीं है। ठीक है, and what we discussed is कि if मतलब if this O is directly attached to the phenyl group, मतलब अगर ये phenyl है, ये O है और ये R है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, यही तो डिस्कस किया था हमने, तो इस वजह से दिस विल नॉट ब्रेक आइदर, दिस विल ब्रेक। ठीक है, बट यहाँ पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स देख के क्या करेंगे, क्योंकि जैसे फिनॉल बनाते हैं तो वो बेंजाइल अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, कंसिडरिंग कि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, एंड दे विल अप्लाई द फिनॉल रूल। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, आपको इन्हें फिनाइल इथाइल ईथर वाला रूल नहीं लगाना है। व्हाट यू हैव टू एनालाइज इज कि विच काइंड ऑफ अल्फा कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ मिक्स्ड ईथर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? टर्शरी तो है नहीं, तो जो भी सिंपल होगा वो अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से यू विल, और यू कैन से द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड विल फॉर्म द अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें क्या है? दिस इज बेसिकली दिस इज CH2 एंड यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप को एक अदर ग्रुप के तरीके लो, उसे फिनाइल रिंग मत कंसीडर करो, एंड दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला रूल सबसे पहले नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है,
व्हाट आर वी एनालाइजिंग, वी आर एनालाइजिंग द अल्फा कार्बन। दोनों में ही सो वी सी कि दोनों में ही जो सब्स्टिट्यूशन है अल्फा कार्बन का वो सेम है, मतलब यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सेम है, सो वी विल गो फॉर द सिंपलर हैलाइड। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने कि इफ आइदर वी विल टेक द लेस सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड, मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा एल्काइल ग्रुप, दैट विल फॉर्म द हैलाइड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सेम है, सो वी विल गो फॉर द लोअर और द सिंपलर हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल कौन सा है, जो छोटा है, सिंपल मतलब छोटा ग्रुप जो है, और लोअर ग्रुप है वो। तो क्योंकि इसमें फेनाइल रिंग लगा है, सो दैट इज व्हाई दिस इज अ बिगर ग्रुप। So this simple group or the you can say the smaller group will form the halide. ठीक है, तो I'm writing it here. जो CH3 CH2 है that will form the halide, and CH2 OH जो दूसरा ग्रुप है that will form the alcohol. So this is benzyl alcohol. ठीक है, याद रखना कि when phenyl with CH2 होता है, this is the benzyl group, benzyl alcohol. So these are the products. Next question we will discuss is, it says you need to prepare aspirin from phenol. ठीक है, तो बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड अ लॉट ऑन एस्पिरिन। ठीक है, तो एस्पिरिन का जो प्रेपरेशन है दैट इज ओनली थ्रू वन मेथड दैट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, वैसे हो सकता है बहुत भी कॉम्प्लेक्स मेथड्स हो, बट वट एवर आर वी हैव डिस्कस्ड ओनली, उसमें केवल एक ही मेथड हमने डिस्कस किया है जिसमें एस्पिरिन इज बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, और वो क्या था कि वी वर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड एज द रिएक्टेंट। ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हम लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी फिनॉल्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स के बारे में जब वी वर डिस्कसिंग, तो वहां पे हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था कि सैलिसिलिक एसिड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, देन इट विल गिव अस एस्पिरिन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एस्पिरिन बनाने के लिए वी नीड सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और हमारे पास सैलिसिलिक एसिड तो है नहीं, बट वी आर गिवन फिनॉल। तो अब हमें क्या करना है, वी नीड टू प्रिपेयर सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल फर्स्ट, एंड देन वी विल यूज इट टू फॉर्म एस्पिरिन। और we know that we have studied the method for preparing salicylic acid from phenol. So I'm writing that first because we are given phenol, so this is phenol. ठीक है, प्लस सबसे पहले फिनॉल में हमें फेनॉक्साइड बनना है बिकॉज फेनॉक्साइड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो NOH रिएक्ट करवा के ONA। ठीक है, नाउ फॉर प्रिपेयरिंग सैलिसिलिक एसिड, अब आप ये बताओ कि I'm writing the reaction here and now you have to tell. I'm giving you a hint that this is a famous named reaction. ठीक है, अब आपको खुद ढूंढना है कि कौन सा named reaction है जो कि which I am writing here. And this ortho position पे COH. I told you कि ये जो COH ऐड होगा ये हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा, कभी भी पैरा पोजीशन पे इस मेथड से, यूजिंग दिस मेथड, कभी भी पैरा पोजीशन पे COH ऐड नहीं होता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज अ फेमस नेम्ड रिएक्शन। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव दिस एंड यू रिएक्ट सैलिसिलिक एसिड with acid anhydride, and which acid anhydride? The simple one, CH3 COO, फिर से CO and CH3। ठीक है, you will react salicylic acid with this anhydride, acid anhydride, to get, मतलब ये जो H ग्रुप होगा that will get removed, मतलब ये जो H ग्रुप होगा फिनॉल का, ये सैलिसिलिक एसिड का, that will be removed, और H की जगह पे COCH3 ऐड हो जाएगा, and COH will remain intact। ठीक है, तो क्या होगा, COCH3, और क्योंकि COH ऑर्थो पे है तो COH वैसे ही रहेगा। ठीक है, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। प्लस अदर कंपाउंड क्या होगा, क्योंकि COCH3 जो है ऐसा ब्रेक कर गया ना, वो मतलब कोई एक बॉन्ड विल ब्रेक, सपोज करो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तो दिस COCH3 विल गेट अटैच टू हियर, इस वाले H के साथ में, और जो बाकी का बचा होगा दैट विल फॉर्म द एसिटिक एसिड। ठीक है, so these two important products are formed in this reaction. Now next question says we need to use Williamson synthesis to prepare
2 ethoxy methyl pentane using ethanol and 3 methyl pentanol। ठीक है, मतलब इन्होंने भी यहाँ पे दे हैव गिवन अस 2 रिएक्टेंट्स। ठीक है, और हमें विलियमसन सिंथेसिस का ही यूज करना है। दिस आल्सो दे हैव मेंशन्ड, तो क्या है, यू हैव टू यूज विलियमसन सिंथेसिस। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है, 2 ethoxy। फर्स्ट वी विल राइट डाउन द स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 ethoxy 3 methyl pentane which is an ether, and reactant या फिर reagent जो हमें दिए हुए हैं which are provided to us are ethanol plus, not plus, comma, 3 methyl pentane to all। ठीक है, मतलब जो दो प्रोडक्ट्स, दो रिएक्टेंट्स विच आर गिवन टू अस, दे आर बोथ अल्कोहल्स। ठीक है, नाउ यू मस्ट रिमेम्बर कि जो विलियमसन सिंथेसिस है उसे उसके लिए 2 रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना कि विलियमसन सिंथेसिस के लिए वी नीड एन एल्डिहाइड, आई एम सॉरी, वी नीड अ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मतलब एल्काइल हैलाइड मतलब RX। ठीक है, एंड अदर वी नीड अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, NaOR। ये दो चीजें चाहिए होती है विलियमसन सिंथेसिस के लिए। क्या चाहिए होता है, वी नीड अल्काइल हैलाइड एंड R', सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, ये दो चीजें चीजें चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन 2 अल्कोहल्स। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हमें ये दोनों पहले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज अ सीरीज काइंड ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली वी नीड टू फॉर्म 2, मतलब वी नीड टू फॉर्म हैलाइड एंड द सोडियम अल्कोक्साइड फ्रॉम दीज अल्कोहल। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट द रिएक्शंस फॉर प्रिपेयरिंग द रिएक्टेंट फर्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारा, अच्छा, फर्स्ट वी विल सी कि विलियमसन सिंथेसिस, यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए। ठीक है, तो बिकॉज, तो पहले हम क्या करेंगे, हमेशा उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इट गेट्स वेरी इजी अंडरस्टैंड टू गेट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट रिएक्टेंट यू नीड टू यूज। सो दिस इज द ईथर दैट वी हैव टू प्रिपेयर। ठीक है, पेंटेन है 1 2 3 4 5, और 2 पे इथॉक्सी लगा हुआ है और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द ईथर दैट यू नीड टू प्रिपेयर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, जैसे हमने विलियमसन सिंथेसिस में डिस्कस किया था कि कोई ईथर बनाने के लिए यू नीड 2। ठीक है, तो हम कौन सा वाला हैलाइड लेंगे और कौन सा वाला सोडियम अल्कोक्साइड लेंगे। ठीक है, इट हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स ऑन आइदर ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेंगे सो दैट विल बी द बेस्ट, एंड अल्कोक्साइड वी कैन टेक एनी। ठीक है, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दैट आई विल राइट यूजिंग रेड पेन। ठीक है, तो प्राइमरी, क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं अल्काइल हैलाइड, दे फॉलो दी दे मेनली फॉलो द एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड दे कैन फॉर्म द एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट्स हो जाते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड के केस में। इस वजह से हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इज बेस्ट इन द केस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बना सकता है, क्योंकि इस वाले कार्बन में तो ऑलरेडी एक कार्बन लगा हुआ है, तो मतलब ये सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये ऑलरेडी एक कार्बन से अटैच है, बल्कि 2 कार्बन से अटैच है। दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 1 डिग्री। ये वाला जो अल्फा कार्बन है, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। तो हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड चाहिए, एंड उसके लिए दिस वी विल यूज दिस ग्रुप। ठीक है, दैट इज वाई, इसका मतलब है वी नीड 2 रिएजेंट्स फॉर दिस पर्पस, और 2 रिएक्टेंट्स। हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड C2H5Cl, और जो बाकी का ग्रुप है दैट विल फॉर्म द एल्कोक्साइड। ठीक है, तो ये पूरा जो R प्राइम है पूरा 2 डिग्री वाला, ये प्लस ONA। ठीक है, ये हमें चाहिए रिएजेंट। अब हमें ये रिएजेंट वी हैव टू प्रिपेयर यूजिंग 2 अल्कोहल्स दैट आर गिवन टू अस। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो हमें इथेनॉल दे रखा है, और हमें क्या चाहिए, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो वी विल यूज इथेनॉल फर्स्ट टू प्रिपेयर इथाइल क्लोराइड। इथेनॉल इज बीइंग गिवन एंड वी विल यूज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर हियर। ठीक है, जो हमने अल्कोहल्स के केस में पढ़ा था।
सो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, दिस इज एसएन रिएक्शन एंड वी विल गेट C2H5Br. ठीक है, नाउ नाउ वी आर गिवन विद द 3 मिथाइल पेंटेन टू ऑल. ठीक है, तो पहले यही लिख लेते हैं. लेट्स राइट डाउन द स्ट्रक्चर, अल्कोहल एंड methyl group. ठीक है, सो दिस इज द अल्कोहल दैट इज बीइंग गिवन टू अस. दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल. ठीक है, क्योंकि दिस कार्बन, द अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू द 2 अदर डिफरेंट कार्बन. ठीक है, तो क्या ये भी अल्कोहल है एंड वी नीड टू प्रिपेयर व्हाट, वी नीड टू प्रिपेयर अल्कोक्साइड फ्रॉम दिस. ठीक है, क्योंकि हमें C2H5Br तो मिल गया हैलाइड, अब हमें अल्कोक्साइड चाहिए. तो इससे हमें अल्कोक्साइड बनाना है, मतलब बेसिकली हमें क्या करना है कि ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इससे हमें सोडियम अल्कोक्साइड, मतलब ये OH को हमें कन्वर्ट करना है ONA में. ठीक है, और वो कैसे होगा, आपको पता है कि whenever this OH group, this hydroxy group has to be converted to the sodium alkoxide type, मतलब ONA में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हमेशा हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं. ठीक है, फिनॉल के केस में भी हम यही करते थे, यहाँ पे भी यही करेंगे. सो व्हाट विल वी गेट, कुछ नहीं, बस H की जगह पे Na आ जाएगा. ठीक है, वो H की जगह पे ONA. ठीक है, तो ये हमें हैलाइड मिल गया पहले रिएक्शन से, और दूसरे रिएक्शन से हमें अल्कोक्साइड मिल गया. ठीक है, ये दोनों चीजें हमें चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग द प्रोडक्ट. ठीक है, यूजिंग विलियमसन. तो अब वी विल यूज बोथ दीज थिंग्स टू प्रिपेयर आवर प्रोडक्ट, ईथर प्लस whatever compounds are formed. ठीक है, AWS मतलब Williamson synthesis is the reaction, and what we will get is finally we will get this. This is the ether that was asked in the question. ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि हमेशा just you have to remember कि primary alkyl halide should be used in the Williamson synthesis, and with 2 degree or 3 degree halide alkene will be the major product. ठीक है, now we will do some more reactions uh, related to the whatever we had discussed today. ठीक है, तो उसमें क्या है, we need to write down the product. This is the ether and this is HBr. That means कि यहाँ पे क्या होगा, this the cleavage of CO bond will be the reaction that we are talking about here. अब हमें ये देखना है कि which one will give halide and which one will give alcohol. ठीक है, तो अगेन क्या देखेंगे कि क्या कोई tertiary group present है, because here no tertiary group is present, so we will go for the least substituted. ठीक है, देखो इस कार्बन पे 3H are there and no other carbon or no other alkyl group is attached. इसका मतलब ये जो है ये least substituted है, और दूसरे वाले अल्फा कार्बन पे 1 ethyl group is attached. ठीक है, इस वजह से least substituted कौन सा हुआ, CH3. So CH3 will form the halide, CH3Br, and the other one will form the alcohol. ठीक है, now this is phenyl alkyl ether. यहाँ पे C2H5 है and this is the phenyl ring. Because this benzene ring is directly attached to O, हम लोग वो फिनॉल वाला रूल लगा सकते हैं कि फिनॉल विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड प्लस C2H5 के साथ में अल्काइल हैलाइड. ठीक है, नाउ we again take this OC2H5 and now our reagents are concentrated H2SO4 and concentrated HNO3. ठीक है, so these reagents are used for the nitration. We are talking about the electrophilic substitution. ठीक है, ये सब electrophilic substitution में है and we are talking about nitration. ठीक है, तो as we discussed today कि ये जो OR group है that is ortho para directing in nature. So ये जो NO2 group होगा that will be attached to the ortho and the para position, and the para product will be the major product because of the steric hindrance. ठीक है, और भी reasons होते हैं but we are considering here steric hindrance. This is the major product para, and similarly we will get the ortho. ठीक है, यहाँ पे NO2. So these were the examples which were related to whatever we had done today, and with these we finish off this chapter, alcohols, phenols and ethers. इसमें we had discussed everything. ठीक है, starting from the structure of alcohols, phenols और ethers. इन तीनों ही class of compounds के we had discussed the structures. ठीक है, then we had discussed the preparation. ठीक है, classification.
After the structures we have discussed classification कि कैसे classified है, कैसे study कर सकते हैं हम. After that we had discussed the preparation कि through different methods, through various methods with the help of flow charts and everything कि कैसे prepare करना है. After that we discussed these physical properties like boiling points or solubility and all, and also the trends like in phenols. Ethers में इतने trends नहीं है, but alcohols और phenols में काफी trends है, and that also we had discussed in detail. Then coming on to the chemical reactions, okay. So we also divided the chemical reactions for all these three classes into different categories, okay, just for the clear understanding, better understanding. So and we have done the several like enough examples according to me. So this was all for this chapter, and we finish it off. So thank you.